રાહુલ ગાંધીને ઈડીએ સમન્સ પાઠવતા હવે કોંગ્રેસ એક્ટિવ મોડમાં આવી ગઈ છે અને ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની રણનીતિ પણ તૈયાર કરી લીધી છે। આવતીકાલે એટલે કે સોમવારે સવારે 9:30 વાગે કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન કરવા જઈ રહી છે। ત્યારે આ આંદોલનમાં શું થશે, શું છે તેની ખાસિયતો, આવો સાંભળીએ જગદીશ ઠાકોર પાસેથી। આવતીકાલે 9:30 વાગે હેલ્મેટ સર્કલ માનવ મંદિરની સામે જીએમડીસી ના હોલમાં 9:30 વાગે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસના કાર્યકરો આગેવાનો ભેગા થશે। અડધો પોણો કલાક ત્યાં ચર્ચાઓ કરીને બાજુની ઈડીની ઓફિસ છે ત્યાં જઈને ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે। આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે કાલે 9:30 વાગે આપ સૌ પણ પધારો। પવનજીએ જે વિગતોથી વાકેફ કર્યા છે આપ સૌને, જો દબાવવાની રાજનીતિ, ડરાવવાની રાજનીતિ, ધમકાવવાની રાજનીતિ કેવી ચાલે છે, ગુજરાતનું મીડિયા જગત એનાથી વાકેફ છે। આજે જે ઘટના બની છે, પાટીદાર સમાજના યુવાનો બારડોલી ખાતે ભેગા થઈ બારડોલી સત્યાગ્રહની જે પવિત્ર ભૂમિ છે ત્યાં સરદાર સાહેબને નમન કરી, વંદન કરી અને ત્યાંથી એક વ્હીકલ રેલી લઈને ગાંધીનગર સરદાર સ્ટેડિયમ સુધી આવવાના હતા। જે સરદાર સ્ટેડિયમ બન્યું ત્યારથી સરદાર સ્ટેડિયમના નામ સાથે જાણીતું હતું, એ સરદાર સ્ટેડિયમનું નવીનીકરણ કરીને સરદાર સાહેબનું નામ ભૂસીને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ બન્યું છે। એ સ્ટેડિયમનું નામ ફરીથી સરદાર સ્ટેડિયમ રાખો, આ મુદ્દાને લઈને આવવાના। આપ સોશિયલ મીડિયામાં જે વિડીયો ફરતા થાય છે જોશો, આજે આપને ખ્યાલ આવશે કેમ આટલો ડર છે કે 5-15 ગાડીઓ ત્યાં સરદાર સાહેબને નમન કરવા જાય છે તો નમન નથી કરવા દેતા। બારડોલીથી ગાડીઓ સરદાર સ્ટેડિયમ આવવા માટે રવાના થાય છે તો આવવા કેમ નથી દેતા? 27 વર્ષના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમયમાં 24 કલાક સમગ્ર ગુજરાતમાં 144ની કલમ કેમ છે? કેમ કોઈ પેપર ખોલવા વાળા બેરોજગારને આવવા નથી દેતા? કેમ કોઈ એક્સ આર્મીને આવવા નથી દેતા? કેમ કોઈ પોલીસના કર્મચારીના પરિવારો ગ્રેડ પે મુદ્દે આંદોલન કરવા માંગે છે તો એને પરમિશન આપવામાં નથી આવતી? ખેડૂતોને પરમિશન આપવામાં નથી આવતી? એ વિદ્યાર્થીઓને, શિક્ષણ જગત સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓને, આરોગ્ય સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓને ક્યાંય પરમિશન નથી આપવા દેતી? એનું કારણ છે કે સરકારને ડર છે, સરકાર ગભરાય છે કે આ જગ્યાએ જો લોકોના ટોળા ભેગા થઈ જશે તો અમારી આબરૂ ધૂળ ધાણી થઈ જશે। સરકાર બરાબર ચાલતી નથી એ પ્રજાને ખબર પડી જશે તો અમને નુકસાન થશે। આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતમાં એ મીડિયા જગત હોય, વેપારી જગત હોય, પ્રોફેશનલ ડોક્ટર્સ, વકીલ, હોસ્પિટલો હોય, એ કિસાન આંદોલન સાથે જોડાયેલા લોકો હોય, એ કર્મચારીઓ સાથે જોડાયેલા લોકો હોય, એ તમામ લોકો ઉપર ડર ઉભો કરે છે, બીક ઊભી કરે છે અને ખબરદાર જો અમારી સામે કંઈ બોલ્યા છો તો જેલના સળિયા ગણવા માટે તૈયાર રહેજો। આ દમનની નીતિની સામે આવતીકાલે પણ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અને કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ રણટંકાર કરવા જઈ રહ્યું છે। તો આજ મુદ્દા પર કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવન ખેડાએ પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે। શું કહ્યું છે આવો જોઈએ। ऐसा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है वो सबके सामने उजागर होती है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साथ जुड़ा एक अखबार नेशनल हेरल्ड, जिसका नाम 1937 में यह अखबार शुरू किया गया। शुरू करने वालों में बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जिनको आज भी हम पढ़ते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास जी टंडन, सरदार पटेल साहब,
रफी अहमद किदवई, ऐसे अनेक हमारे नेता, इस देश के नेता, वो किसी पार्टी से भी बहुत बड़े नेता, पूरे देश के नेता, इन लोगों ने 1937 में ये अखबार शुरू किया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान जिसका किया था, उस वक्त इस अखबार पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी, उसको बंद कर दिया। और महात्मा गांधी ने जब ये बंद हुआ अखबार, तब कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी है कि इसको बंद कर दिया। इतना महत्वपूर्ण अखबार। इस अखबार पे उस वक्त से लेकर लगातार लोगों को भरोसा था कि एक बैलेंस्ड अखबार है। आप सब पत्रकार हैं, आप समझेंगे मेरी इस बात। अखबार चलाना आसान काम नहीं होता, खास तौर पे जब वो ईमानदारी से चलाया जा रहा हो। तो नेशनल हेराल्ड को काफी घाटे होने शुरू हुए, लगभग 90 करोड़ के घाटे। ये जानकारी आपके साथ साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड आते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाए जाते हैं और सच कहीं दब जाता है, तो सच आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। 90 करोड़ के जो ऋण थे, जो उन पर कर्जा हो गया था, वो क्या था? तनख्वाहें पत्रकारों की, कर्मचारियों की, बिजली के बिल, किराए, वो जो खर्चे होते हैं किसी भी अखबार को या किसी भी व्यवसाय को भी चलाने के। 2002 से 2011 के दौरान 100 किश्तों में, अलग अलग किश्तों में, कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को ऋण दी, 90 करोड़ का ऋण दिया, ताकि ये सारी तनख्वाहें दे सके, अपना कर्जे से बाहर आ सके। 100 किश्तों में 90 करोड़ एक राजनीतिक दल ने एक ऐसी अखबार को दिया जो लगभग उसकी और भारत की विचारधारा की अखबार, जिसका एक अपना एक इतिहास था, जो इस देश को विरासत में मिली थी। ये एक ऐसी अखबार थी जिसका पूरा विश्व आजादी के आंदोलन से पहले इस अखबार को पढ़ के उसको समझ में आता था कि इस देश में क्या हो रहा है। कोई ऐसा कानून साथियों है नहीं कि राजनीतिक दल इस तरह का ऋण नहीं दे सकता, ऐसा कोई कानून नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक नाराज भाजपा के नेता हैं, आजकल भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हमारे खिलाफ शिकायत की चुनाव आयोग को कि ये ऋण जो है गैर कानूनी है। उस चिट्ठी के जवाब में चुनाव आयोग ने सुब्रमण्यम स्वामी को लिखा और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में जिससे इसको हम गैर कानूनी कहते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को जो ऋण दिया था वो बिल्कुल कानून की नजरों में सही था, दुरुस्त था। तो बताइए दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को किस बात? तो ये जो 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी, नेशनल हेराल्ड की एक कंपनी है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, अब वो ऋण तो वापस चुका नहीं सकते, तो उस ऋण को इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर दिया। हर जो भी कंपनी व्यवसाय को समझते हैं उनको बहुत आसानी से समझना है। और यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया नाम की बनी, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, सुमन दुबे जी, ऐसे कुछ और लोग इसके डायरेक्टर बने। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 25 की कंपनी होती है, उसके डायरेक्टर्स को कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती उस कंपनी से, लाभ का एक पैसा नहीं मिल सकता, डिविडेंड नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। तो गैर कानूनी तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब यंग इंडियन ने वो सारे शेयर्स अपने पास रख लिए, खरीद लिए एसोसिएटेड जर्नल्स के,
लेकिन एसोसिएटेड जर्नल्स जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकालता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम अभी भी एसोसिएटेड जर्नल्स के ही नाम पर रहेंगी, उन्हीं की हैं। हम लोगों ने पहले सोचा कि कहीं कोई गलती हो गई हो, बहुत खंगाला, कई वकीलों से बात की, एक इतना गैर कानूनी काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो बदलाव की राजनीति लाने का नाम लेकर आए, ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। कुछ गैर कानूनी नहीं है, लेकिन नहीं साहब, नोटिस क्यों दिया? ताकि एक हफ्ते की हेडलाइन मिल जाएगी। ये सिर्फ हेडलाइन का व्यापार करते। नरेंद्र मोदी जी, एक चीज में हम सबको उनसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हेडलाइन की मैनेजमेंट करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, राहुल गांधी को नोटिस भेज दो ईडी का, सब के सब जाएंगे राहुल गांधी को ईडी का नोटिस, बड़ी बड़ी हेडलाइन चलेगी। कोई और विवाद हो गया, सरकार की गलती, कोई विफलता सामने आ गई, हिंदू मुस्लिम करा दो, हेडलाइन बदल जाएगी। तो ये जो ईडी का नोटिस है, जिसमें कल हमारे नेता जाएंगे, सीना ठोक कर जाएंगे, सर ऊपर करके जाएंगे, निडरता से जाएंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, कुछ छिपाने को नहीं है। लेकिन यह सच आप सबके सामने आना जरूरी है कि किस तरह से ये सताने की कोशिश कर रहे हैं, उन आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिन आवाजों से नरेंद्र मोदी आज भी डरते हैं। मैं ये बड़ा विश्वास से बोल रहा हूं। मैंने बहुत नेता देखे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता देखे हैं, इतना बड़ा कायर नेता मैंने नहीं देखा। ऐसा डर, क्योंकि राहुल गांधी आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने समझौतावाद नहीं किया, क्योंकि राहुल गांधी को आप कहीं भी दबा नहीं सकते हो। तो आप इस तरह से उनकी छवि को धूमिल करो, और छवि धूमिल करने में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है भारतीय जनता। वो हम सब जानते हैं क्या किया। लेकिन हम आपको यह भरोसा दिलाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितनी ही साजिश रच लें, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। हम आप सबके हितों की लड़ाई उसी मजबूती से लड़ेंगे, उससे दुगनी मजबूती से लड़ेंगे, बुलंद आवाज में इनसे सवाल पूछेंगे। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા હવે કોંગ્રેસ પણ એક્ટિવ મોડમાં નજર આવી રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે લડી લેવાના મૂડમાં હાલ જોવા મળી રહી છે। આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ સમાચાર જોવા માટે આપ જોતા રહો ગુજરાત તક। આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। નમસ્કાર।